بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مسز حفصہ غفار سلام عرض کرتی ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے جس ناول کی کہانی لے کر آئے ہیں وہ ہے آخری رات۔ تو آئیے، آخری رات، وہ دھیمی دھیمی اور پراسرار چاندنی میں نہائی ہوئی رات یوں سسک رہی تھی جیسے کوئی ودوا ناری اپنے سیاہ لمبے بال کھولے ماتم کنا ہو۔ یہ بھارتی صوبے یو پی کے ڈیرہ دوون کے جنگلاتی و مضافاتی علاقے کی جگہ تھی، جہاں تارکول کی چمکتی ہوئی ایک پکی سڑک آگے جا کر کسی ترشول کی طرح 3 حصوں میں منقسم ہو کر سامنے تاریک جنگل کے سینے میں پیوست ہو رہی تھی۔ سڑک کے 2 رو استادہ، اکھیماتا اور سرس کے گھنے پیڑ خلیج بنگال سے آنے والی سبک گرم ہواؤں کے دوش پر ہولے ہولے جھوم رہے تھے۔ 400 گمبھیر سناٹے کا راج تھا۔ البتہ کبھی یوں ہوتا کہ اگر کوئی تیز رفتار گاڑی طوفانی رفتار سے گزر جاتی تو اس کے زوردار زناٹے کی وجہ سے اس پرہیبت ماحول کے سکوت میں ذرا دیر تک تھرتھراہٹ طاری رہتی، اور پھر وہی پراسرار سناٹا کسی منحوس گدھ کی طرح پر پھیلائے آن بیٹھتا۔ پراسرار باسیوں کی طرح کھڑے اکھی ماتا کے پیڑوں میں جدھر سڑک کے کنارے بھری مٹی بھری ہوئی تھی، وہاں کسی ان دیکھی مخلوق کے پیروں کے نشان یوں بنتے چلے جا رہے تھے جیسے کوئی دھیرے دھیرے چہل قدمی کے انداز میں چل رہا ہو۔ مٹی پر ابھرنے والے پیروں کی ساخت کے نشان کسی عورت کے معلوم ہو رہے تھے، لیکن ایک بات دہشت ناک حد تک عجیب تھی کہ دکھائی نہ دینے والی کوئی پراسرار نسوانی ہستی یا تو اپنی پشت کے رخ پر چل رہی تھی یا پھر اس کے پاؤں الٹے تھے، کیونکہ بھربھری زمین پر پیروں کے نشانات الٹے بنتے جا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ غیبی مخلوق کوئی پچھل پائی تھی۔ اگر کوئی جیتا جاگتا انسان ان ابھرنے والے الٹے پیروں کے نشانات کو دیکھ لیتا تو دہشت سے اس کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کا آخری بار دھڑکنے کے بعد رک جانا یقینی تھا۔ اسی لمحے سامنے سے کسی گاڑی کی تیز روشنی ابھری اور سڑک کے کنارے الٹے پیروں کے نشانات بھی مزید ابھرنے بند ہو گئے، جس کا واضح مطلب یہی نکلتا تھا کہ ان دیکھی پچھل پائی ایک لمحے کو شاید رکی تھی، مگر پھر اگلے لمحے وہ پھر چل پڑی تھی، مگر اس بار وہ خاصی تیز رفتاری سے چل رہی تھی کیونکہ الٹے پیروں کے نشانات اب جلدی جلدی بن رہے تھے۔ ذرا آگے پکی سڑک سے ملحقہ کچا مگر قدرے کشادہ اور ناہموار راستہ اندر تاریک جنگل میں چلا گیا تھا۔ پچھل پائی کے قدموں کے نشان اب تیزی کے ساتھ اس جانب دوڑے جا رہے تھے۔ ادھر اس گاڑی کی روشنی جو اس کی ہیڈ لائٹس کی تھی بتدریج نزدیک آتی جا رہی تھی۔ وہ ایک فیاٹ کار تھی۔ پھر یوں ہوا فیاٹ کی رفتار آہستہ ہوتی چلی گئی اور اگلے ہی لمحے اس نے کچھ ناہموار کچے راستے کی جانب موڑ کاٹا جدھر کچھ دیر پہلے ہی وہ نادیدہ پچھل پائی دوڑتی ہوئی غائب ہوئی تھی۔ کچے راستے پر اترتے ہی فیاٹ نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے۔ ڈرائیونگ وہیل پر آہنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کار کی رفتار قدرے کم کر دی گئی تھی۔ اب کار دھیمے دھیمے ہچکولے کھاتی ایک پرانے اور نیم تاریکی میں ڈوبے مندر کے کھنڈر کے قریب سے گزر رہی تھی۔ رمیش لال کھرانا 40-45 کے پیٹے میں تھے۔ برابر والی سیٹ پر ان کی پتنی درگا اور پچھلی سیٹ پر جوان بیٹی شانتی براجمان تھی۔ اس کے ملی چہرے پر اس وقت بلاح کی معصومیت اور آنکھوں سے اشتیاق جھلک رہا تھا۔ رمیش لال کھرانا کی نگاہیں ونڈ سکرین کے پار کار کی ہیڈ لائٹس میں تیزی سے نکلتے ویران راستے پر جمی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار نہ جانے کیوں ان کے سپاٹ چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہری تشویش کے آثار نمودار ہو جاتے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جلد سے جلد اپنی منزل تک پہنچ جانا چاہتے ہوں۔ شاید رات زیادہ اتر آئی تھی، اس لیے وہ ذرا فکر مند بھی تھے۔ در حقیقت انہیں سر شام ہی اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر بدقسمتی سے راستے میں ٹائر پھٹ جانے کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے۔ سفر کی ابتدا میں یہ مختصر
परिवार बड़े पुरलुत्फ अंदाज में सफ़र से महसूस हो रहा था, मगर फिर जैसे जैसे रात गहरी और मंजिल करीब होने लगी, बातों का सिलसिला भी बदतदरीज मौकूफ़ होता चला गया और इन सब को एक पूरे सिरार चुप लग गई। फ्योर्ट नेमान एक तंग सा मोड़ काटा और उसके बाद वो एक सुनसान मरघट के करीब से गुजरने लगी, जो चुटकी हुई चांदनी की धीमी और उदास रोशनी में बेहद पूरे सिरार लग रहा था। अचानक फिर जाने क्या हुआ कि यकदम रमेश लाल खुराना ने कार की रफ्तार तेज कर दी। रफ्तार तेज होने की वजह से फ्योर्ट कच्चे और नाहमवार रास्ते पर तेजी के साथ हिचकोले खाने लगी। टेक इट इजी रमेश, क्या हुआ? आहिस्ता चलो, रास्ता देखो कितना खराब है। उनकी पत्नी दुर्गा देवी ने अपने पति को मुतनब्बे किया और अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि अगले ही लम्हे उकबी सीट पर बैठी शांति के हलक से एक चीख सी बरामद हुई और ठीक इसी समय रमेश लाल खुराना का पांव भी ब्रेक पर पड़ गया। टायर यकदम जाम होकर कच्चे रास्ते पर जरा आगे घिसटते चले गए और उन्हें मामूली सा झटका लगा। शांति की फैली हुई आंखें विंड स्क्रीन के पार किसी को देखने की कोशिश में महवे हैरत थी। क्या हुआ शांति बेटी? रमेश लाल ने अपनी गर्दन घुमाकर उपबी सीट पर बैठी अपनी बेटी शांति की जानिब देखा और तशवीश भरे लहजे में पूछा, डैडी, आपने कुछ नहीं देखा? सामने कदरे रुक कर शांति ने कहा। उसकी फटी फटी निगाहें सामने जैसे गड़ सी गई थी। नहीं बेटा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया सामने। किसकी बात कर रही हो? तुमने आखिर किस बात पर चीख मारी थी शांति? ऐसा तुमने क्या देख लिया? उसकी माँ ने भी कदरे बुलंद आवाज में पूछा। मम्मी, मुझे यूं लगा जैसे कोई इंसान, शायद वो कोई औरत थी, जो अचानक ही हमारी कार के सामने आ गई। वो जैसे कुछ याद करते करते बोली, ओहो, ये तुम्हारा कोई वहम होगा भाई। दुर्गा देवी ने अपना सर झटकते हुए कहा। नहीं मम्मी, मैंने खुद देखा था उसे इन्हीं आंखों से अपनी। हैरत है वो आपको क्यों नजर नहीं आई? शांति हैरत से बोली। शांति के कतईयत भरे लहजे ने रमेश लाल खुराना को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा उन्होंने अपनी कार के शीशे उतारे और दाएं बाएं देखने लगे। मकसद अपनी बेटी को तसल्ली करना भी था। बाहर चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, अलबत्ता मरघट पूरे सिरार चांदनी में नहाया बड़ा डरावना मंजर पेश कर रहा था। एक जानिब चौड़े पत्तों वाले घंटे पेड़ नर्म को हवाओं के दोष पर पूरे सिरार तमाशियों की तरह तालियां पीटते हुए महसूस हो रहे थे। ओहो रमेश, लीव इट, तुम भी क्या बच्ची के साथ बच्चा बन गए? गाड़ी तो चलाओ, आखिर इस वीराने में क्यों खड़ी कर रखी है? अब दुर्गा ने कदरे बेजारी से कहा। ये अलग बात थी कि उनका बच्चा खासा मतहोश हो रहा था। रमेश लाल खुराना ने अपनी पत्नी के बेलाग तबसरे पर गाड़ी को गियर में डाला और आगे बढ़ा दी। ताहम वो अपनी बेटी शांति को तशफ़ी देते हुए मुख्तसरन बोला, शांति बेटी, ऐसे माहौल में इस किस्म के वाहमे होना कोई अचंभे की बात नहीं। ये जरूर तुम्हारा वहम ही था। शांति अपने पिता की बात पर खामोश हो रही, लेकिन उसके चेहरे से ये बात मुतरश्शे थी कि वो अपने पिता की बात से मुत्तफिक नहीं है। वो किसी तौर भी इस पूरे सिरार हकीकत को अपने वहम पर महमूल नहीं करना चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने अपनी जागती आंखों से सामने कार की विंड स्क्रीन के पार किसी औरत का साया देखा था, जिसके चेहरे के नकूश वाजे ना थे। ताहम अपने खदुखाल से वो कोई औरत ही नजर आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो यकदम कार के नीचे आ गई हो, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बात शांति के मुतहय्यर किए दे रही थी। वो फिर इसरार साया सिर्फ उससे ही क्यों नजर आया? वो उसकी मम्मी डैडी को क्यों नहीं दिखाई दिया, जो बिल्कुल सामने अगली सीट पर बुरा जमान थे? बहरसौर सफर एक बार फिर खामोशी के साथ मगर कदरे सुस्त रवि से शुरू हो चुका था। लेकिन अभी इस बात को थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक शांति
اپنی ماں سے بولی، ماتا جی آپ نے ابھی مجھ سے کچھ کہا؟ اے لڑکی تو پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ میں تو چپ بیٹھی ہوں کافی دیر سے۔ اس کی ماں درگا دیوی گڑبڑا کر قدرے تیز لہجے میں بولی، کیا ہوا بیٹا، تم نے کیا سنا؟ تمہاری ممی نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں ان کے ساتھ ہی تو بیٹھا ہوں۔ جی پتا جی، مجھے یوں لگا تھا جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو، میں سمجھی شاید ماتا جی نے دھیرے سے مجھ سے کچھ کہا ہے۔ اس کا دماغ چل گیا ہے، درگا دیوی نے کہا۔ شانتی کی اس بات کو بھی درگا نے اس کے وہم پر محمول کیا تھا، جبکہ شانتی کا اس سلسلے میں خیال مختلف تھا۔ اس کے ذہن میں اب کئی قسم کے جواب طلب سوال گردش کر رہے تھے۔ وہ فطرتاً ویسے ایڈونچر پسند لڑکی تھی۔ سفر جاری تھا۔ اسی لمحے مان پھر شانتی کو اپنی سماعت سے مرتعش سی آواز ٹکرائی، جیسے کسی نے گہری سانس کھینچ کر پراسرار سی سرگوشی کی ہو، لیکن وہ الفاظ اس عجیب انداز میں ادا کیے گئے تھے کہ وہ ان کا مفہوم نہیں سمجھ سکی تھی، مگر اب وہ یہ بات اپنے ماتا پتا کو بتا کر دوبارہ مذاق کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ خود کافی مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ ادھر رمیش لال کھرانا کا ذرا دور مدھم چاندنی میں کسی آبادی کے دھندلے آثار دکھائی دیتے ہیں تو انہوں نے کار کی بھی رفتار ذرا تیز کر دی۔ اب راستہ بھی کافی حد تک ہموار ہو چلا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے کچے پکے مکانوں کے دھندلے خاکے واضح ہونے لگے۔ وہ گھری پریم کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ذرا دور ایک قدرے اونچے ٹیلے پر ایک قدیم طرز کی حویلی کی عظیم الشان عمارت نظر آئی۔ یہ ٹھاکر دیال داس کی حویلی تھی۔ کچھ اور آگے بڑھے تو السائی ہوئی آنکھوں والے آوارہ کتے بھونکتے ہوئے کار کا تعاقب کرنے لگے۔ کار کچے پکے راستوں اور گلیوں سے گزرتی شمال کی سمت مڑ گئی، جہاں چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی بہتات تھی۔ مکان اب پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر ایک ٹیلے کو کراس کر کے فیورڈ رک گئی۔ سامنے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مٹیالے پتھروں پر ایک حویلی نما عمارت نظر آ رہی تھی، جو اپنی مخصوص قدیم طرز کی بناوٹ کے باعث بڑی پرشکوہ لگ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ گہرے سکوت اور عجیب سی اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لو بھئی آ گئے رام بھون۔ رمیش لال کھرانا کے اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ پر مارتے ہوئے قدرے بلند آواز میں بولے، اور ساتھ ہی کار کا ہارن بھی 2-3 مرتبہ بجا دیا۔ حویلی کے آگے مختصراً سا باغیچہ بنا ہوا تھا اور پھولوں کی کیاریاں بھی باغیچے کے ساتھ ساتھ دور ویا صدر دروازے تک چلی گئی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا اپنے ہاتھ میں لالٹین تھامے نمودار ہوا۔ اس بوڑھے کو یہ لوگ پہلی ہی نظر میں پہچان گئے تھے۔ یہ نندو بابا تھے، جنہوں نے نہ صرف رمیش لال کھرانا بلکہ ان کے آن جہانی پتا کو بھی گودوں کھلایا تھا۔ کھرانا فیملی سے نندو بابا کا کچھ ایسا ہی پرانا تعلق تھا۔ رمیش لال ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ نندو بابا اتنی عمر کو پہنچ کر بھی توانا تھے، تاہم وقت کے کا حساب دیتے دیتے اب ان کی کمر میں خم آ چکا تھا۔ انہیں دیکھ کر یہ لوگ سب کار سے اتر آئے۔ نندو بابا اپنی بیٹی کے ساتھ اس حویلی میں مقیم تھے، جس کا نام لاجونتی تھا، مگر پیار سے سب اسے لاجی کہتے تھے۔ جب کبھی بھی رمیش کمار کھرانا یا ان کے عزیز وغیرہ اس پرفضا علاقے میں بغرض سیر و تفریح آتے تو رام بھون میں فروکش ہوتے تھے۔ پھر نندو بابا اور ان کی جوان بیٹی لاجی ان کی خدمت کرنے میں بڑی تندہی کے ساتھ مصروف کار ہو جاتے تھے۔ اس وقت رام بھون حویلی کے جو اوپری دریچے روشن تھے وہ انہی باپ بیٹی کی پرخلوص خدمت کا ثبوت تھے۔ انہوں نے ان کے آنے کی اطلاع پاتے ہی حویلی کے 2 کمروں کو اچھی طرح سے صاف ستھرا کر کے درست کر دیا تھا۔ نندو بابا کی گھریلو کہانی بھی غمناک تھی۔ ان کی عرصے سے کوئی اولاد نہ تھی اور شادی کے پورے 15-20 برس بعد جب نندو بابا کی پتنی ہرنا نے لاجونتی کو جنم دیا تو اس بیچاری کا دیہانت ہو گیا۔ لاجی کی نندو بابا نے کن مصائب و آلام سے پرورش کی یہ وہی جانتے تھے۔ نندو بابا کیسے ہو؟ رمیش لال کھرانا ذرا آگے بڑھتے ہوئے بولے۔ بھگوان کی کرپا ہے لالا جی، شکر ہے آپ خیریت سے پہنچ گئے۔ بڑی رات کر دی ویسے، نندو بابا جواباً بولا۔ وہ رمیش لال کو ہی نہیں بلکہ اس کی آنجہانی پتا کو بھی لالا کہتا تھا۔
आओ बालिका आओ, अंदर आ जाओ, वो शांति और दुर्गा से बोला और अपनी रहनुमाई में उन्हें साथ लेता हुआ गुलाम गर्दिशों और बल खाते जीनों से होता एक बड़े कमरे में ले आया। कमरे की आराइश बड़ी खूबसूरत थी। उसमें एक बड़ा जहाजी साइज का कदरे ऊंचा चोबी सहाने वाला पलंग था और छत पर झिलमिलाता हुआ फानूस लटक रहा था। बाहर से हवेली जितनी कदीम तर्ज की लगती थी, अंदर से उतनी कदीम नहीं थी। इतनी ही जदीद साजो सामान से आरास्ता ये हवेली थी। ये लोग थके हुए थे, लिहाजा खाना खाते ही सो गए। यूं तो शांति भी सोने के लिए अपने कमरे में आ गई थी, मगर ज़हनी बेकली के बायस उसे नींद नहीं आ रही थी। पहर रात दबे पांव सरक रही थी। कमरे के मेहराबी दरीचे के चौबी कवाड़ खुले हुए थे और उस पर झूलता हुआ मुहीन पर्दा बाहर से आने वाली सुबह खुराम हवाओं से होले होले फड़फड़ा रहा था। शांति की मसहरी के ऐन सामने दीवार की क्लॉक रात के 2 बजा रहा था। इस कदर सन्नाटे में उसकी बड़ी सुई टिक 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 शांति के दिलो दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थी। शांति अपनी मसहरी पर लेटी अपने साथ पेश आमदा इन पुरस्रार वाक़यात के बारे में गौर कर रही थी जिन्होंने उसकी नींद उड़ा दी थी। कार के आगे यकदम किसी औरत का पुरस्रार साया आ जाना, फिर अपने कानों में किसी निस्वानी सरगोशी की सरसराहट, ये सब उसे बेचैनो मुतहय्यर किए दे रहे थे। एक लम्हे को तो उसके जहन में ये भी ख्याल आया कि हो सकता है कि उसका वहम ही हो, जो बकौल उसके पिताजी रमेश खुराना के कि ये सब वीरान और होलनाक माहौल की कारिस्तानी होती हैं, जो इंसान की कुव्वत मुतहय्यला को महमेज करके उस पुरस्रार अंदाज में हमला आवर होती है। मान कमरे के 24 जोर से आपस में टकराए। शांति का दिल धड़क उठा, वो चौंक उठी, वो यकदम उठ खड़ी हुई। उसके आसाब तन गए थे। वो आहिस्तगी से चलती हुई दरीचे के करीब आई। सामने बाहर का माहौल हौलनाकी में डूबा हुआ था। आसमान दूर तक बिल्कुल साफ था। दूर तक चुटकी हुई चांदनी, अनगिनत टमटमाते हुए तारों की रोशनी में इस सरबफलक पहाड़ की चोटियां नजर आईं, जो नशेब में घने और तारीक जंगलों से ढकी हुई थी। एक लम्हे को शांति को नज़ारा बड़ा भला लगा। बहर तो शांति को दरीचे के दोनों पट जोर से बजने की वजह यही समझ में आई कि हवा का कोई तेज झोंका टकराया होगा, लेकिन उसे हवा का कोई तेज झोंका महसूस तो नहीं हुआ था। दूसरे उसे ये भी अच्छी तरह याद था कि दरीचे के दोनों पट जो अंदरूनी सिमत में खुलते थे, जो अंदर की तरफ एक थम के जरिए मजबूती से अटके हुए थे, लिहाजा उनके खुद ब खुद खुलकर बजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शांति का दिल ये सब कुछ सोचकर यकबारगी जोर से धड़का था। बहरतौर उसने दोबारा दोनों पट अंदर की तरफ खोलकर थम में अटका दिए ताकि दरीचा खुला रहे, नरम नरम खुश्क हवा का गुजर होता रहे। लेकिन अभी वो वापस अपनी मसहरी की जानिब पलटी ही थी कि अचानक उसे यूं लगा जैसे उसके करीब ही किसी ने जोर से गहरी सांस खींची हो। वो ठिठक गई, लेकिन रुकी नहीं। वो मोहतात अंदाज में अतराफ की सुन गुन लेती रही और लेते हुए मसहरी तक पहुंच गई और धीरे धीरे ठटके हुए अंदाज में मसहरी पर दराज हो गई। इसी लम्हे फिर उसकी समात से पुरस्रार निस्वानी सरगोशी टकराई और इस बार बहुत वाज़े थी। बेटी तुम आ गई, अब मैं शांत हो जाऊंगी, मुझे अब शक्ति मिल जाएगी। सरगोशी सुनकर शांति को पहली बार अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। मगर फिर एक अजब बात यह हुई कि शांति को यूं लगा जैसे वो खुद ब खुद नींद की गहरी और पुरसुकून वादी में उतरती चली जा रही हो। थोड़ी देर बाद वो पुरसुकून नींद में डूब चुकी थी। अगले दिन अली सुबह शांति की आंख खुली, बल्कि उसे नंदू बाबा ने उसी के कहने पर इतनी सुबह जगाया था। रात वाले वाक़े को शांति ने सरदस्त राज में रखना ज़रूरी समझा था। वो अब पहले इस गांव की सुबह खेजी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहती थी, जो उसकी कमज़ोरी थी, क्योंकि इस गांव की सुबह खेजी उसे मालूम था कि ये गांव सुबह और शाम के मनाजर इसमें बड़े दिल फरेब होते हैं। सुबह की सैर के लिए शांति ने नंदू
की बेटी लाजी को साथ लिया। लाजी एक सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी। वो लाजी के साथ बाहर चहलकदमी करती हुई राम भवन से जरा आगे निकल आई। बहुत जल्द दोनों आपस में घुल मिल गई थीं, क्योंकि शांति बहुत अरसे बाद यहाँ आई थी। घड़ी प्रेम बड़े खूबसूरत पुरफजा इलाके में वाक़या थी। दूर तक सब्जे की चादर जमीन पर बिछी हुई थी। एक जानिब तवील जंगली पहाड़ी सिलसिला था, जिसकी दिलफरेब ढलानों पर नशेबी जंगल बुने हुए थे, और जहाँ से अनगिनत खुश रंग परिंदों के जोर जोर से बोलने और चहचहाने की जल तरंग आवाजें आ रही थीं। नंदू बाबा की बेटी लाजी ने बताया कि डेरा दवन का ये घना जंगल और पहाड़ियाँ कई 100 मीलों तक फैले हुए हैं, जो आगे जाकर मैसूर की पहाड़ियों के अलावा चक्रवता की पहाड़ियों और हरद्वार के जंगलात से मिल जाते हैं। शांति इन मालूमात से काफ़ी महजूज हो रही थी। उसे नीले और शफाफ आसमान पर कहीं कहीं बादलों के सफ़ेद टुकड़े रूई के गालों की तरह तैरते बड़े भले नजर आ रहे थे। शांति हरी हरी धूप वाले एक टीले पर मशरक़ की सिमत अपना मुंह करके खड़ी हो गई। फिर अपने होंठ सख्ती से बंद करने के बाद एक गहरी सांस अंदर खींची और अपना मुंह कदरे खोलकर धीरे धीरे सांस बाहर खारिज करने लगी। चंद लम्हे यही अमल दोहराने के बाद जब वो योगा की ये बुनियादी वर्जिश कर चुकी, तो फिर उसने बाकायदा योगा की दीगर मशकों की आसन लगाना शुरू कर दिए। एक तरफ खड़ी लाजी बड़े हैरान कुन नजरों से शांति को योगा करते हुए तकी जा रही थी। उसे यूं लगा जैसे शांति ने नरमो नाजुक जिस्म में हड्डी नाम की कोई उसके चीज ही नहीं है। कोई निस्फ घंटे बाद शांति योगा से फारिग हुई और अब खुद को बहुत हल्की फुल्की और पुरसुकून महसूस कर रही थी। योगा करने के बाद वो अपने अंदर एसाबी कुव्वत महसूस कर रही थी, एक गैर मामूली एसाबी कुव्वत। फिर उसके बाद दोनों वापस राम भवन आ गए, जहाँ हवेली के बगीचे में उसके माता पिता नाश्ते में मसरूफ थे। शांति, यहाँ भी शुरू हो गई तुम्हारी योगा? अब उसकी माँ दुर्गा ने शांति की तरफ देखते हुए प्यार से कहा और उसके लिए जूस उंडेलने लगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर वर्जिश वगैरह करने की क्या जरूरत है? तुम कौन सा फैटी हो? ओ नो मम्मी, योगा से महज जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और आत्मा की भी वर्जिश होती है। शांति जूस का गिलास अपनी माँ से लेते हुए बोली, इससे कुव्वत फैसला मजबूत और आत्मा शांत होती है। अच्छा भाई, रहने दो अपना भाषण, उसकी माँ जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोली। अपनी पत्नी की बात पर रमेश लाल खुराना ने मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया और शांति भी अपने पिता की तरह मुस्कुरा कर नाश्ता करने बैठ गई। वो शाम का वक्त था। दिन भर खेतों में काम करने वाले थके मांदे किसान अपने घरों को लौट रहे थे। दूर उफक पर आफताब गुरूब होने की तैयारी में था। परिंदे अपनी खुश रंग डारें आशियाने की तरफ महवे परवास थे। यही वो मंजर था जो शांति को बहुत इंस्पायर करता था। उस वक्त उसका जहन घड़ी प्रेम आते हुए अपने साथ बीतने वाले पुरस्कार वाक़यात में उलझा हुआ था। वो इस बात पर गौर करने लगी कि आखिर वो किसकी सरगोशियाँ थीं जो उसकी समाज से टकराई थी, और गुज़श्ता शब भी इसके कमरे में उसे एक और सरगोशी सुनाई दी थी जिसमें ममता भरी हलावत थी। उसे किसी ने बेटी कहकर मुखातिब किया था। सरगोशी के अल्फाज उसके दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। फिर उसे वो बात याद आने लगी जब घड़ी प्रेम आते हुए अचानक ही उनकी कार के आगे किसी औरत का ह्योला आ गया था। मगर ताज्जुब खेज बात ये थी कि वो साया उसके माता पिता को तो दिखाई नहीं दिया था, हालांकि वो दोनों ही गाड़ी की अगली सीट पर बुरा जमान थे। क्या वो सब उसका वहम था, महज उसकी कुव्वते मुतखय्यला का शाखसाना, या फिर हकीकत, कोई पुरस्कार हकीकत, या कोई ऐसा राज जिस पर से पर्दा उठने वाला था और जो उसकी जात से वाबस्ता था? मान शांति खड़े खड़े चूक गई। उसके ख्यालात मुंतशिर होते चले गए। उसे अपने सामने थोड़े फासले पर एक शानदार सजी सजाई बग्गी आती हुई दिखाई दी, जिस पर एक राजकुमारों ऐसी शान वाला नौजवान बुरा जमान खुद ही को चुवानी करता नजर आया। शांति उस वक्त अकेली ही सैर को निकली थी। उसके हमरा नंदू बाबा की बेटी लाजी नहीं थी। शांति यकटक उस राजकुमार को देखने में महव हो गई। वो इसी जानिब आ रहा था। शांति सतही जहन रखने वाली लड़की नहीं थी कि हर ऐरे गैरे नौजवान लड़के को उसकी शान और शौकत के साथ देखकर रीझ हो जाती। इस नौजवान का चेहरा मुतासिर कुन था।
उसके चेहरे के अनोखेपन ने शांति जैसी रिजर्व लड़की को बिल्कुल ही महव करके रख दिया था। शायद यही वो लम्हे थे जब अजनबियत उनसियत में बदल जाती है। आने वाले राजकुमार ने भी बागें खींच ली थी। फौरन दोनों घोड़े हुनहुना कर रुक गए। राजकुमार जैसा वो नौजवान शांति पर नजरें जमाए नीचे उतरा, उसके करीब आया। दोनों की आंखें चार हुई। फिर शायद दोनों के दिलों ने बेयक वक्त इस बात की गवाही दी कि अरसे से उनका दिल चुपके चुपके तड़प रहा था। वो यही तो है। उसकी जागती आंखों के सामने खड़ा था। बस फिर सदियों का सफरे उल्फत लम्हों में तय होता चला गया और दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी ना रहे। उसका नाम अर्जुन दास था। वो घड़ी प्रेम के ठाकुर दयाल दास का इकलौता बेटा था। उन्होंने अब रोज का मिलना मामूल बना लिया था और जल्द से जल्द एक दूसरे के हो जाना चाहते थे, क्योंकि शांति और उसके माता पिता का राम भवन में क्याम थोड़े ही अरसे के लिए था, क्योंकि रमेश लाल शहर के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और थोड़े दिनों के छुट्टियों के बगैर तफरीक घड़ी के फ्रेम वक्त आए थे। शांति, तुम्हें अपने माता पिता से बात तो करना ही पड़ेगी एक दिन, आखिर अर्जुन ने एक दिन उससे कहा। तो शांति जरा तजब्जुब का शिकार हो गई, क्योंकि उसे खुद अर्जुन के बारे में अपने माता पिता से बात करना अजीब महसूस हो रहा था। शांति को खामोश पाकर अर्जुन दास दोबारा बोला, तुम कहो तो मैं खुद ही पहल करूं और अपने बापू के साथ तुम्हारे राम भवन आ जाऊं? नहीं 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 अर्जुन, शांति जैसे यकदम चूकी। ये अभी दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा तुम ठहरो, मैं पहले चुपके से अपनी माता से बात करूंगी। देखूंगी कि वो इस सिलसिले में मुझे क्या मशवरा देती हैं। शांति की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर जरा तरद्दुद के आसार नमूदार हुए। वो उसे मुखातिब करते हुए बोला, ठीक है शांति, मगर जरा जल्दी ही बात कर लेना, बल्कि आज ही बात कर लेना तो बेहतर होगा। कल इस जगह आकर मुझे बता देना। इसके बाद वो दोनों मजीद कुछ देर घूमते और बातें करते रहे, मगर उसके बाद शांति वापस राम भवन लौट आई। मम्मी, वो बहुत अच्छा लड़का है। शांति मौका मिलते ही तन्हाई में अपनी माता दुर्गा देवी से बोली। वो अर्जुन के बारे में अपनी माँ को पहले ही एतमाद में ले चुकी थी। यही वजह थी कि उसकी माँ मुस्कुराते हुए उसका कोमल सा गाल प्यार से थपथपा कर बोली, अरे भाई, आखिर तुम्हारी पसंद है, कोई गलत तो ना होगी। हम तुम्हें जैसे जानते नहीं। बेचारे अर्जुन को तो तुम्हें राम करने में कितने पापड़ बेलने बड़े होंगे, ये तो वही जानता है। चलो, मैं तुम्हारे डैडी से आज ही रात बात करके देखती हूँ, दुर्गा देवी ने कहा, और शांति मुतमईन सी हो गई। उस वक्त रात के 10 बजे का आलम था और रमेश लाल खुराना अपने स्टडी में मौजूद थे। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज पर वो चौंके। फिर यस कम इन कहते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो अपनी पत्नी दुर्गा देवी को अंदर आते देखकर किताब बंद कर दी। अगले दिन शांति ने खुशी खुशी अर्जुन से मुलाकात पर उसे खुशखबरी सुनाई कि उसने अपने माता पिता से इस सिलसिले में बात कर ली है और उन्होंने इसके डैडी से भी इशारतन तस्करा कर डाला है और एक आध रोज में ये बात हो सकता है तय हो जाए। अर्जुन ये सुनकर एकदम खुश हो गया और इस खुशी में उसके जी में जाने क्या समाई कि वो इसे बसद इश्क शौक अपने हवेली में अपने पिता ठाकुर दयाल दास से मिलवाने की गर्ज से ले आया और शांति ने भी उसके हमरा जाने पर जरा भी तामुल ना किया। अर्जुन उसे अपनी बगी में सवार करवा कर हवेली में दाखिल हुआ। अरे अर्जुन, वाह, तुम्हारी हवेली तो बड़ी शानदार है। शांति एक हालनुमा कमरे में जो गालबन नशिस्त गाह के तौर पर मुस्तमिल था पहुंचकर खासा मरऊब होते हुए बोली, दीवारों पर ठाकरों के खानवादे अबाउजदाद के रऊनत अमेज तस्वीरें लटकी हुई थीं। तुम यहाँ बैठो, मैं अपने बापू को बताकर अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद शांति ने देखा कि उसके हमरा एक भारी भरकम जिसामत का आदमी नमूदार हुआ जो 60 के पेटे में थे। वो जान गई कि ये अर्जुन के पिताजी ठाकुर दयाल दास हैं। शांति ने अदब से उन्हें प्रणाम किया। ठाकुर दयाल दास शांति को आशीर्वाद देने के बाद वहीं बैठ गए। अभी उन दोनों के दरमियान रस्मी बात शुरू हुई थी कि अचानक ही एक महिरुल अकूल वाक़या रोनुमा हुआ। एकदम शांति की हालत मुतगय्यर होने लगी और उसका कोमल चेहरा करख्त और बहुत भयानक होता चला गया। सामने बैठे हुए ठाकुर दयाल दास और उनका बेटा अर्जुन दास शांति की यकलख्त बदलती हुई डरानी हैयत पर दमबखुद रह गए। इसी लम्हे शांति, जिसका चेहरा खौफनाक हद तक भयानक हो चुका था,
कि हलक में से एक खुरखुराती हुई आवाज़ बरामद हुई। वो ठाकुर दयाल दास से मुखातिब थी। ठाकुर, पहचानो मुझे, मैं सोमना हूँ, जिसे तुमने पूर्णमासी की एक रात शमशान घाट में जिंदा गाड़ दिया था। अब पूर्णमासी की रात में थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं और इतने ही तेरी जिंदगी के भी। जुमला खत्म होते ही शांति अपनी असली हालत में लौट आई। उसके अंदाज से यूं लग रहा था जैसे उसे अपनी बदली हुई खौफनाक कैफियत के बारे में बिल्कुल ही इल्म ना था, और ना ही ये कि उसने अपने प्रेमी अर्जुन दास के बापू ठाकुर दयाल दास को किस खौफनाक अंदाज में धमकाया था। अर्जुन ने पलटकर अपने पिताजी ठाकुर दयाल दास की तरफ देखा तो दंग रह गया, क्योंकि उसके पिताजी का चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। ये तुम्हें क्या हो गया था शांति? अर्जुन हैरत और खौफ के मिले हुए अंदाज में बोला। शांति खुद हैरान थी कि दोनों बाप बेटा उसे इतने अजीब अंदाज और नजरों से क्यों तके जा रहे हैं। ठाकुर दयाल दास इतने खौफ और सरसीमा से क्यों हैं? इसे ले जाओ यहाँ से अर्जुन, दूर ले जाओ इसे मेरी नजरों से। ठाकुर दयाल दास ने बुखलाते हुए कदरे दुरुस्त लहजे में अपने बेटे अर्जुन को हुक्म दिया। बेचारा अर्जुन खुद अजीब परेशानी में मुब्तला था। फिर ठाकुर दयाल दास वापस खुद ही उठकर वहां से चला गया। अर्जुन, ये तुम्हारे बापू को एकदम क्या हो गया था? शांति हैरत से बोली। मेरे बापू को नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ हो गया था शांति, अर्जुन जरा सख्त लहजे में बोला। दरअसल वो खासा परेशान हो चुका था। मुझे क्या हो गया था अर्जुन? भगवान के लिए मुझे बताओ अर्जुन, मैं कुछ नहीं जानती, क्या हुआ था मुझे? इसकी बात पर अर्जुन चंद सानिये किसी सोच में गर्क रहा। फिर शांति को उसकी अचानक बदलती हुई कैफियत के बारे में बताने लगा। आखिर में फिर अर्जुन से बोला, शांति तुम कौन हो? मुझे अपने बारे में सच सच बताओ। तुम्हें बापू के सामने अचानक ये क्या हो गया था? शांति चंद लम्हे की उसकी जानिब हैरत भरी नजरों से देखती रही। फिर उसके बाद बोली, मुझे तो खुद नहीं मालूम अर्जुन। मैं तुम्हारे पिताजी को जब प्रणाम करने लगी तो अचानक मेरी आंखों के सामने तारीकी छा गई। फिर मैं खुद को जैसे बेहिस्सो हरकत महसूस करने लगी। जब तारीकी छुटी तो तुम्हारे बापू को मैंने जाने क्यों खौफजदा सा अपनी जानिब देखते हुए पाया। क्या वाकई अर्जुन तुमने देखा था ये अच्छी तरह कि मेरा चेहरा खौफनाक और आवाज भारी हो गई थी? हाँ शांति, तुम्हारा सुंदर चेहरा यकदम डरावना और खौफनाक हो गया था और तुमने बापू को धमकाया भी था। इसकी बात पर शांति परेशान सी हो गई और सोचने लगी कि अर्जुन के बापू से भला उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। मैंने उन्हें इससे पहले नहीं जानती थी, तो उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। इसे परेशान और शशदर देखकर अर्जुन तशवीश से बोला, घबराओ नहीं शांति, ये कोई पुरस्कार मामला लगता है मुझे, जिसे हम दोनों ने बल्कि तुमने हल करना है। मुझे तुम पर किसी गंदी आत्मा का साया लगता है। तुम ऐसा करो, इस बात का तस्करा अपने पिताजी से करके देखो और अपने बारे में उनसे कुछ पूछ कर देखो। मुझे यकीन है कि उन्हें कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। आखिर को तुम्हारे पिताजी हैं वो। अर्जुन की बात पर वो चूक सी गई। फिर अर्जुन से बोली, अर्जुन तुम्हें भी अपने बापू को खरीदना होगा। आखिर ये सब कुछ उन्हीं के साथ क्यों हुआ? इसकी बात पर अर्जुन ने वो ख्याल अंदाज में अपना सर हिलाया और फिर वो बग्गी में सवार होकर वापसी के लिए चल पड़े। पिताजी मैं कौन हूँ, क्या हूँ? शांति ने अपने पिता रमेश से पूछा और वो अपनी लाडली बेटी के इस सवाल पर दंग रह गए। ये रात का वक्त था और ये सब लोग भोजन वगैरह से फारिग होकर सोने की तैयारी कर रहे थे। दुर्गा देवी अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी, जबकि रमेश लाल की आंखों से जाने क्यों अभी तक नींद कोसों दूर थी और वो यूं ही अपनी लाडली बेटी शांति के कमरे में आ गए थे। दर हकीकत वो कुछ दिनों से अपनी बेटी में अजीब सी तब्दीली महसूस कर रहे थे। वो उसे अक्सर गुमसुम और खोया खोया सा पाने लगे थे। हस्बे तवक्को शांति अभी तक जाग रही थी, किसी गहरे ख्याल में गर्क थी। अपने पिताजी को देखते ही वो संभल कर बैठ गई थी और फिर ये बात छेड़ दी थी। इसके इस अजीबो गरीब और अचानक सवाल पर रमेश लाल खुराना एक लम्हे को बुरी तरह ठटके थे। क्यों बेटा, ये क्या कह रही हो तुम हमारी बेटी हो और हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, उन्होंने अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपाते हुए जवाबन बड़े रसान से कहा। मगर पिताजी, कभी कभी मुझे यूं लगता है कि मुझे आप और माता जी के अलावा भी कोई और प्यार करता है, ममता भरा प्यार। शांति बदस्तूर अजीब सी खोई हुई कैफियत में बोली। पिताजी, कभी कभी तो मुझे अपनी समाअतों में बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पर ममता भरी सरगोशियाँ सुनाई देती हैं और कोई पुरस्कार औरत है जो सामने नहीं आती, लेकिन मुझे रात को लोरियाँ सुनाती है।
इतना बताकर शांति खामोश हो गई और रमेश लाल उसकी बात सुनकर बुरी तरह दंग रह गए। बताइए ना पिताजी, मैं कौन हूँ, मेरा माजी क्या है? मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आप मेरी गुज़श्ता जिंदगी के किसी तारीख और पुरस्रार पहलू के बारे में जानते हैं। रमेश लाल अपनी बेटी की इस कदर ज़ूद फहमी पर भुंचका रह गए और उनकी आंखें और चेहरे से यूं लग रहा था जैसे वो शांति की बात पर अपने दिल का चोर छुपाने की नाकाम सही कर रहे हों। शांति के बेहम इसरार पर वो खामोश से हो गए। फिर वो जैसे उससे कतराते हुए तफले तसल्ली देकर अपने बेडरूम में आ गए। अंदर आकर वो अपनी इजी चेयर पर बुरा जमान हो गए। उनका चेहरा किसी अमीक सोच का गमाज नजर आने लगा। अब वो गहरी संजीदगी से उन सारे वाक़यात पर बारी बारी गौर व खोज कर रहे थे। जब ये लोग घड़ी प्रेम में दाखिल हुए कि राह में शांति को पूरे इसरार इंसानी साया नजर आया था और साथ ही उसे किसी की सरगोशियां भी सुनाई देती थीं, जो शांति को अब भी कभी कभी सुनाई देती हैं। फिर शांति ने उन्हें यह भी बताया था कि अर्जुन के बाबू ठाकुर दयाल दास के सामने किस किस्म का वाक़या पेश आया था। ये सारी बातें महायुरुल अकूल और नाकाबिले यकीन सही, लेकिन बहर तौर इन पुरस्रार वाक़यात के शवाहद भी मौजूद थे। रमेश लाल खुराना हर शय को हकीकत और साइंसी तौजीहात के तनाजुर पे परखने के आदी थे। ताहम उन्हें इतना ज़रूर हुआ कि उन अवामिल ने उन्हें बिलाखिर माजी के किसी गमगुश्ता बाप को खोलने पर मजबूर कर दिया। फिर उन्हें बरसों पहले की वो भयानक अंधेरी रात याद आ गई। आज से तकरीबन 18 साल पहले जब रमेश लाल अपनी पत्नी दुर्गा देवी की हमरा अपने गांव घड़ी प्रेम से शहर वापस जा रहे थे कि घड़ी प्रेम में रमेश लाल के माता पिता भी रहते थे, जबकि खुद रमेश लाल अपनी तालीम और नौकरी शादी वगैरह के बाद शहर में आबाद हो गए थे। शहर के कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने माता पिता को शहर में अपने साथ ही रखें, मगर वो आबाई बस्ती प्रेम घड़ी को किसी तौर भी छोड़ने पर तैयार ना थे। इन दिनों रमेश लाल की पत्नी दुर्गा देवी के साथ एक ट्रेजेडी हो गई। उनकी पत्नी 2 मरतबा उम्मीद से हुई, मगर दोनों बार ही उनका अबॉर्शन हो गया, जिसकी वजह से दुर्गा देवी का जहनी तवाजुन बिगड़ने का खतरा लाक होने लगा। डॉक्टर ने ये तक भी कह दिया था कि अगर बहुत जल्द इनकी गोदहरी ना हुई तो ये अपना जहनी तवाजुन खो सकती हैं। बहरतौर इस बात ने रमेश लाल को परेशान करके रख दिया। खैर उन्होंने अपने कॉलेज से 1 माह की छुट्टी ली और घड़ी प्रेम आ गए। यहाँ आकर उनकी पत्नी दुर्गा देवी की तबीयत ने कुछ संभाला लिया, मगर जहाँ कहीं भी वो किसी बच्चे को देखती, उसकी आवाज़ सुनती, वो फौरन बेकरार हो जाती। महीना पूरा हुआ तो उन्होंने घड़ी प्रेम से वापसी का सफ़र बांधा। फ़ज़ा और माहौल की खुशगवार तब्दीली ने दुर्गा देवी पर बहुत अच्छा असर डाला था। बहरतौर वो वापस हुए और दौराने सफ़र रात ने आन लिया। सोने पर सुहागा के ऐसे में मूसलाधार बारिश ने भी आ लिया और अभी तक घड़ी प्रेम की कुछ कच्ची हदूद में थे कि अचानक उनकी कार का इंजन बंद हो गया। शायद कार के कार्बोरेटर में पानी चला गया था। बाहर चारों तरफ घोर तारीकी का राज था। रमेश लाल के चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार नमूदार हो गए थे। उन्होंने एक निगाह पिछली सीट पर डाली जहां उनकी पत्नी सो रही थी। वो स्टीयरिंग पर हाथ जमाए होंठ भींचे बैठे रहे। वो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। फिर जल्द ही उनकी मुराद बर आई। बारिश कम होते होते तकरीबन बिल्कुल बंद हो गई। वो कार के डैशबोर्ड के खाने से टॉर्च निकालकर बाहर आ गए। बाहर हर तरफ तारीकी का राज था। बारिश के बाद मौसम खासा खुश्क हो गया था। अलबत्ता टहनियों और पत्तियों से चपकने वाले कतरे जब नीचे जमाशुदा पानी में गिरते तो बड़ा दिल फरेब सा जलतरंग बाज उठता। रमेश लाल खुराना अगरचे मजबूत आसाब के मालिक थे, लेकिन बहरतौर फितरतन इस अंधियारे जंगल में उन्हें गुमान अमेज इज़्तिराब ज़रूर महसूस हो रहा था। वो टॉर्च की महदूद रोशनी में कार को बोन उठाकर उसकी खराबी देखने लगे। खराबी मामूली ही सी थी जो चंद मिनटों में दूर हो गई। उन्होंने बोन बंद किया और कार की ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा खोलना ही चाहते थे कि अचानक अपने उकब में एक तेज़ और करबनाक करह सुनाई दी। वो दहल गए। यूं अंधेरी रात और वीरान जंगल में किसी इंसान की कराह अच्छे भले इंसान का दिमाग माऊफ कर सकती थी। अगर कराह दोबारा ना उभरती तो रमेश लाल उसे अपना वहम ही समझते, लेकिन वो अब कराह बतदरीज आहों में बदल रही थी। रमेश लाल ने अपना दिल मजबूत किया और आवाज़ की सिमत टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए आगे बढ़ने लगे। एक लम्हे को उनके जी में आई कि वो यहाँ से वापस लौट जाएं, मगर फिर उनका दिल ना माना। आहों और सिसकियों के आहंग से ये अंदाज़ा होता था जैसे कोई बड़ी तकलीफ में हो।
वाज़े तौर पर अब पुरस्रार और करबनाक आवाज़ नस्वानी मालूम होने लगी। रमेश लाल खुराना उसी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। बिलाखिर वो उस जगह पर पहुंच गए, लेकिन वहां का मंजर देखते ही वो बुरी तरह ठठक गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने जो भयानक मंजर देखा वो अच्छे खासे मजबूत दिल गुर्दे वाले इंसान को कपकपा देने के लिए काफ़ी था। रमेश लाल भी ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर लर्ज उठे। क्या देखते हैं कि सामने कीचड़ में एक औरत इंतहाई जानकनी के आलम में बड़ी सिसक रही है। उसके करीब ही एक नौज़ायदा बच्चा पड़ा हमक रहा है। कीचड़ में खून की भी काफ़ी आमेजिश नजर आ रही थी। वो औरत इंतहाई अजियत में मालूम होती थी, लेकिन उस वक्त उसकी सांसें उखड़ रही थीं। और फिर उससे पहले कि मुतहैयर खड़े रमेश लाल उस जाँ बलब बदनसीब औरत की तरफ बढ़ते, उस घायल वजूद ने एक आखिरी झटका लिया और साकत हो गया। वो मर चुकी थी। ताहम रमेश लाल डगमगाते कदमों से जरा करीब हो गए तो उन्हें करीब ही जमीन में एक घड़ा भी खुदा हुआ नजर आया। करीब पड़ा वो नौज़ायदा बच्चा अब अपनी बारीक आवाज से आऊं आऊं कर रहा था। रमेश लाल का कुछ ना सूझा। उसने बच्चे को उठा लिया और अपनी फ्योट कार में आकर उसे कपड़े से अच्छी तरह साफ करके अपनी पत्नी दुर्गा के गोद में लौटा दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए। अचानक उनके ज़हन में आया कि उस बदनसीब औरत का जस्ते खाकी यूं छोड़ देना मुनासिब नहीं, लेकिन चूंकि अब वो मर चुकी थी और दूसरे ना ही उनके पास इस नाजुक हालत में कोई ऐसा बंदोबस्त था जिससे वो उस औरत का क्रियाक्रम करते, लिहाजा यह ख्याल जहन से झटक कर वो आगे को हो लिए। गाड़ी चलाने के दौरान जहां तक उनको समझ में आ रहा था वो ये था कि इस औरत के साथ जरूर कोई जुल्म हुआ है। इस हालत में भी किसी जालिम ने इसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया था, जो बाद में दर्जा की वजह से तड़पी होगी और बारिश की वजह से मिट्टी नरम हो जाने पर बाहर आ गई होगी और एक नई जिंदगी को जन्म देकर खुद अपनी जिंदगी हार गई होगी। तमाम अब उन्होंने ये हतमी फैसला कर डाला था कि वो अब इस बच्चे को अपने पास रखकर दुर्गा देवी की गोद हरी कर देंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से यही कहा कि ये उसका अपना बच्चा है। वो नीम पागल सी तो थी, ममता की मारी ने उसे वाकई अपना बच्चा समझकर सीने से लगा लिया। ये बच्ची अब शांति की सूरत में उनकी औलाद बन चुकी थी, जिसे अब ये दोनों मियाँ बीवी अपनी औलाद की तरह चाहने लगे थे। शांति से भी रमेश लाल ने आज तक ये सनसनी खेज और अंधोखनाक राज छुपा रखा था कि वो उन्हें किन भयानक हालात में मिली थी। अब वो इन सब बातों को अपने दिल में कहीं दफन कर चुके थे हमेशा के लिए। मगर अब 18 साल बाद जिन पुरस्रार अजीब व गरीब हालात से शांति गुजर रही थी, उन्होंने बहरहाल रमेश लाल को माजी कुरेदने पर मजबूर कर दिया था। इन सारे हालात व वाक़यात के तनाजुर में रमेश लाल ने तजिया करते हुए सोचा कि 18 साल पुराने जिस अंधोनाक वाक़े को वो दफन कर चुके थे, शायद जिस उसके आशिकारा होने का वक्त आन पहुंचा था, जिसकी कड़ियां शांति की जिंदगी से मिल रही थीं, और इस पुरस्रार ताल्लुक की बिना पर शांति आज इन पुरस्रार हालात से दोचार हो चुकी थी। और बिलाखिर उसने आज कदरे तंग आकर उनसे यानी रमेश लाल अपने माजी के मुतालिक पूछ ही लिया। अब रमेश लाल खुद शशोपंच का शिकार थे कि वो शांति को इस अंधोनाक हकीकत से आगाह किस तरह करें। कहीं ये बात उसकी या खुद उनकी अपनी पत्नी दुर्गा देवी पर मनफी असर न कर दे। तहम सरदस्त उन्होंने शांति को टाल दिया था, लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें आखिर एक ना एक दिन शांति के सामने ये अंधोनाक हकीकत जाहिर करनी पड़ेगी। कमरे में हल्का हल्का धुआं फैलता था। हाथ से डील डोल और अबनूसी रंगत का एक शख्स गिरवे रंग की धोती बांधे आग रोशन किए ज्ञान ध्यान के ऐसे अंदाज में आंखें मूंदे बैठा किसी जॉब में महव था। इसके करीब ठाकुर दयाल दास खासा परेशान खड़ा था। भीड़ू, जल्दी बताओ कि ये सब क्या है? क्या कोई आत्मा है? मेरे खून की प्यासी हो रही है क्या? वो धीरज ठाकुर, धीरज। भीरू नामी वो तांत्रिक शख्स अपनी आंखें मूंदे इत्मीनान से बोला। वो काले जादू और सफली अलूम का माहिर ठाकुर दयाल सिंह का खास आदमी था। ठाकुर, जिस इंसान का माजी केवल खिलाड़ में ही बीता हो, उसे फिर हर आफत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। भेरू, व्यास दाल हलक के बल चीखा, जिससे उसकी जहनी अबतरी और जोलीदगी पोदीदा थी। माना कि तू हमारे परिवार का पुराना खास नानतरक है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं तू हमसे इस लहजे में बात करे। ना ना ठाकुर, तुम गलत ना समझो हमें। भेरू शोलों पर अपनी निगाहें जमाते हुए बोला। मैं तो तुम्हें शांत रहने को कह रहा हूँ। अच्छा जरा ठहरो, सब बताता हूँ तुम्हें। फिर वो अपने स्याह मोटे मोटे होंठ बदबदाने लगा। ठाकुर दयाल दास बेचैनी और गुस्से की कैफियत में उसे कुछ पढ़ते देखने लगा। दरअसल वो शांति से मिलने की बाद बुरी तरह खाइफ हो गया था। उसे न जाने क्यों ये अंदाजा हो चुका था कि शांति के अंदर कोई बेकरार आत्मा घुसी हुई है और उसकी जान की दुश्मन है।
ये उससे किसी किस्म का इंतकाम लेना चाहती है। लिहाजा ठाकुर दयाल दास ने भीरू को ये सब बताकर उस आत्मा की तलाश और उसके खात्मे पर मामूर कर दिया था। चंद लम्हों बाद तांत्रिक भीरू अपनी आंखें खोलकर ठाकुर दयाल दास के सामने गोया हुआ। सुनो ठाकुर, आज से 18 वर्ष पहले आषाढ़ के महीने में एक सीता समान कंवारी कन्या अपने बूढ़े बाप के साथ तुम्हारी जागीर में दाखिल हुई थी और जिसे तुमने अगवा करके अपनी हवस का निशाना बनाया था। और जब तुम्हारा दिल उसे भर गया तो तुम उसे पूर्णिमा की रात शमशान घाट में जिंदा दफन कर दिया था। उस वक़्त वो कन्या माँ बनने वाली थी। फिर यूं हुआ कि उस रोज़ तेज़ बारिश हुई और किसी तरह से वो कन्या हाथ पांव चलाती घड़े के गीली मिट्टी हटाकर बाहर निकल आई और उसी वक्त उसने एक बच्ची को जन्म दिया और खुद जान हार बैठी। उस बच्ची को किसी ने अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर जवान किया। कुछ देर तांत्रिक भीरू ने तवक्कुफ किया, फिर सिलसिला कलाम जोड़ा। ठाकुर, ये सब बातें मुझे 3 दिनों तक मसान के पाठ में मसरूफ रहते हुए मालूम हुई हैं। मुझे मालूम हुआ कि इस बदनसीब सोमना जिसे तुमने अपने जुल्म का निशाना बनाया, अब उसकी आत्मा को ऐसी शक्ति मिल चुकी है जो ठीक पूर्णमासी की रात में अपनी बेटी, जो दर हकीकत राम भवन के खुराना खानदान में परवरिश पाकर जवान हुई है और जिसका नाम शांति है, के शरीर में दाखिल होकर तुझसे अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। तांत्रिक भीरू इतना कहकर चुप हो गया। ठाकुर दयाल उसकी आखिरी बात पर बुरी तरह खौफजदा होकर हकलाते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो पंडित? मुझे अब उस आत्मा से क्यों कर नजात मिल सकती है? भीरू ने एक बार फिर अपनी आंखें मूंद ली। शोलों में यकबारगी हिद्दत आ गई और भीरू का चेहरा आतिशी होने लगा। वो शायद फिर किसी चौक में मशगूल हो चुका था। ये कहानी अभी जारी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।